اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا, کہا میرے ساتھیوں مجھے علم ہوا ہے, مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہودیوں نے میرے مسلمان ساتھیوں کو, میرے مسلمان بھائیوں کو کنویں کا پانی اس کا خریدنا, اس کا لینا ناممکن بنا دیا گیا ہے. اٹھو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرو, مل کر چندہ کرو, تاکہ اس کنویں کا آدھا حصہ جسے یہود فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں, جسے یہود بیچنے کے لیے تیار ہیں, اس کنویں کو خرید لیا جائے. میں اللہ کا نبی اسے بشارت دیتا ہوں کہ جس نے اس کنویں کی خرید کے لیے چندہ میں حصہ ڈالا, میں اپنے ہاتھ سے اسے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا. جس چیز کی بشارت مل رہی ہے, حوض کوثر کا پانی میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں, یہ بات کہتے ہیں. انہی میں سے ایک مہاجر جو اپنے رب کے لیے, اللہ رب العالمین کے لیے اپنے گاؤں کو, اپنے دیس کو, اپنی بستی کو ایک مرتبہ نہیں مسلمانوں 2 مرتبہ چھوڑا ہے. ہم اپنا گاؤں چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر کچھ تکلیف ہو تو گاؤں چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے. ہو سکتا ہے کتنوں جھک جائیں ان کے سامنے, لیکن گاؤں نہیں چھوڑ سکتے. چاہے ان کے قدموں پر جھک جانا پڑے, لیکن گاؤں نہیں چھوڑ سکتے. وہ مہاجر اللہ رب العالمین کے خاطر, اس دین کے خاطر, اسلام کے خاطر, قرآن اور حدیث کو بڑھانے کے خاطر ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ اپنے گاؤں کو, اپنی بستی کو چھوڑا ہے. ان مہاجروں میں سے ایک مہاجر اٹھتا ہے, چشم فلک نے دیکھا, دنیا نے دیکھا. وہ مہاجر اپنے آقا کو خطاب کر کے کہتا ہے, یا رسول اللہ, آپ نے حوض کوثر کے پانی کا وعدہ کیا ہے, اب کسی سے چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, اب کسی کے سامنے چندہ کی ضرورت نہیں ہے. اس کنویں کی ساری رقم میں اپنی جیب سے ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑا ہے, صحابہ موجود ہیں, اللہ کے نبی کے ساتھی موجود ہیں. ایسی تنگ دستی کے عالم میں جس وقت کے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا, لوگوں کے پاس پینے کے لیے کچھ نہ تھا, اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پونجی کے بیشتر حصے کو, اپنی دولت کے آدھے سے زیادہ حصے کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا اشارے پر لٹا دیے. یہ ہوتا ہے ایمان کا جذبہ. آج مسلمانوں ہماری مسجدیں ٹوٹی ہوئی, آج ہماری مسجد کے اندر کہیں پانی نہیں تو کہیں لوٹا نہیں, اور کہیں امام کو دینے کے لیے تنخواہ نہیں, کہیں ہمارے جو ممبر ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں. اور مسلمانوں یہ دولت لے کر کہاں جاؤ گے؟ یہ جو دولت کما رہے ہو یہ قبر کے اندر تو لے کر جاؤ گے نہیں, یہ جو گاڑی بھاڑی بنگلہ بنا رہے ہو یہ تو قبر کے اندر لے کر جاؤ گے نہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا, لوگوں سے کہا, عثمان کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ کسی اور سے چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اکیلے اس کنویں کی رقم میں اکیلے دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی نے کہا, عثمان میں اپنے ساتھیوں کو گواہ کر کے تم سے آج یہ وعدہ کرتا ہوں
कल रोज़े क़यामत में तुझे अपने हाथों से हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा। मुसलमानों, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने कहा, आपके हुक्म पर आपने मुझसे नहीं कहा, लेकिन आपकी जुबान से बात निकली कि मुसलमानों को पानी की जरूरत है, मुसलमानों को पीने के लिए कुआं चाहिए। मैं आपके हुक्म पर ये कुआं का पानी लोगों पर वक्फ करने के लिए तैयार हूं। कहा उस्मान, तो फिर उठो और जाओ कुएं का पानी मुसलमानों के लिए वक्फ कर दो, मुसलमानों को दे दो। कहा या रसूल अल्लाह, ऐसी बात ना कीजिए, ये पानी ही नहीं या रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ पानी ही अल्लाह के रास्ते में वक्फ नहीं करूंगा, बल्कि कुआं ही मुसलमानों के लिए वक्फ है। पूरा के पूरा कुआं ही मुसलमानों को मैं दे रहा हूं, अपनी मैं मिल्कियत भी बाकी नहीं रखना चाहता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये कुआं जो है वो उस्मान ने खरीदा है। या रसूल अल्लाह, ये मैं कुआं अल्लाह के रास्ते में दे देता हूं। ईमान का जज्बा। दौलत तो बहुत लोग कमाते हैं, दौलत कोई भी कमाता है, लेकिन खर्च करने की ताकत सब में नहीं होती है। जुमा का दिन होता है, यहां भी कुछ ऐसे मुसलमान होते हैं जो उनके जेब से 10-5 रुपया 10 रुपया नहीं निकलते। आगे सुनिए, फिर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और लोगों और मुसलमानों, अल्लाह ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है, कायनात के अंदर रहमत बनाकर भेजा है। एक दिन मुसलमानों की बारी और एक दिन यहूदियों की बारी। एक दिन मुसलमान पानी लेंगे, एक दिन यहूद पानी लेंगे। फिर आगे अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, और लोगों सुन लो, जिस दिन मुसलमानों की बारी होगी, जिस दिन मुसलमानों को पानी लेने की बारी होगी, उस दिन गैर मुस्लिम भी आए, उस दिन यहूद भी आए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मुफ्त में पानी देगा, पानी की कीमत वसूल नहीं होगी, पानी के लिए उन्हें पैसा देने की जरूरत नहीं। उस उम्मत के वो मुसलमान हैं, हम उस नबी को मानने वाले हैं। हम हमारे जेब से 10-20 रुपया नहीं निकलते, इमाम को पैसा देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता, तनख्वाह देने के लिए इतना हम परेशान हैं। अगर हम चाहते घर का इतना कुछ कर सकते हैं, 2 मंजिला 3 मंजिला घर द्वार, गाड़ी भाड़ी बंगला सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इमाम को तनख्वाह देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। उनमें भी हम मोलाई करते हैं, मौलवी साहब 100 ले लो, 3000 ले लो, 5000 ले लो, 7000 ले लो। जो इंसान जनाजे की नमाज पढ़ाता उसकी तनख्वाह 3000। जो शख्स आपको, जो इमाम आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ाता उसकी तनख्वाह 4000, और जो नौकरी करता उसकी तनख्वाह कितनी है? 50,000, 60,000, 70,000। जो आपको दीन की दावत देता है, कुरान और हदीस की दावत देता है, जिस इंसान आपको जहन्नम से डराता है, जन्नत की बशारत देता है, जन्नत की तरफ लेकर जाता है, उसके लिए आपके पास 3-4 हजार रुपया भी नहीं होते। ये आपका नहीं, हमारे पूरे इलाके की यही हालत है। जो इंसान मुर्दा के सामने खड़ा होकर नमाज पढ़ाए उसकी तनख्वाह 3000, और जो ऐसा छोटा मोटा काम करे वो मजदूरी लेता है 500-600 रुपया। तो मतलब सबसे घटिया कौन हुआ? मौलवी। सब अच्छा काम कौन करके देता है? मौलवी। लेकिन आप सबों की नजर में सबसे घटिया हुआ मौलवी, इसकी कोई इज्जत नहीं।
उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी के अदना इशारे पर आधा कुआं खरीद लिए। अल्लाह के नबी ने कहा जिस दिन मुसलमानों की बारी होगी उस दिन गैर मुस्लिम भी आएंगे, उन्हें भी पानी मिलेगा, कोई कीमत नहीं ली जाएगी। जब यहूदियों ने देखा कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मुफ्त में पानी दे रहा है, तो हमसे कीमत देकर कौन खरीदेगा, हमसे पैसा देकर कौन खरीदेगा। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, आपकी खिदमत में आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर आपको इसी तरह मुफ्त में पानी देना है तो फिर कुआं का आधा हिस्सा भी खरीद लीजिए। मुफ्त में पानी देना है तो आधा हिस्सा भी खरीद लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर पर तशरीफ फरमाकर दोबारा वही बात इरशाद फरमाए कि ओ लोगों, कौन है जो उस्मान ने उस आधे कुएं को खरीदा है, कौन है जो उस आधे कुएं के लिए चंदा दे। मैं अल्लाह का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत की बशारत देता हूं। किस चीज की बशारत मिली? पहले हौज़े कौसर की बशारत मिली, अभी क्या कह रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस कुएं के लिए चंदा देगा, चंदा में हिस्सा लेगा, मैं उसे बशारत देता हूं कि वो जन्नत में जाएगा, कोई और नहीं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठकर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, और किसी से चंदा मांगने की जरूरत नहीं है, उस कुएं की पूरी रकम उस्मान अकेले अपनी जेब से अदा करने के लिए तैयार है। बशारत मिली, पहले हौज़े कौसर की, फिर जन्नत की, और आगे देखिए ये तकरीर बहुत लंबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही जगह पर 7 मर्तबा जन्नत की बशारत दी है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। ये मकाम होना चाहिए, इस तरह का जोश और जज्बा होना चाहिए मुसलमानों को। चंदा में सदका खैरात करने के लिए हर चीज में हम जोश और जज्बा दिखाते हैं, लेकिन सदका खैरात करने के लिए हम सबसे पीछे हैं। अब आइए 2-4 हदीस पढ़ूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह तकरीर को खत्म करूंगा। एक मर्तबा अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम का तज़किरा किया, अपने चेहरे को पीछे हटा लिए, और फिर कुछ देर के बाद अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की आग को याद किए, अपना चेहरा पीछे हटा लिए। सोचिए कि जहन्नम की आग क्या है। उसके बाद कुछ मिनट के बाद, कुछ घड़ी के बाद अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से कहते हैं, ओ साथियों, जहन्नम की आग से बचो, जहन्नम से बचो। अगर तुम्हारे पास खजूर का आधा हिस्सा हो, खजूर का आधा टुकड़ा हो, उसे भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करके, उसे भी अल्लाह के रास्ते में सदका व खैरात करके जहन्नम की आग से बचो। किसके घर में आधा खजूर नहीं होगा? कोई ऐसा घर होगा जिसके घर में खजूर का आधा टुकड़ा ना हो? वो भी कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुछ भी नहीं घर में खजूर का आधा हिस्सा हो, उसे भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करके जहन्नम की आग से बचो। आप सोच सकते हैं कि जहन्नम की आग कितनी खतरनाक आग है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं, 2-4 खजूरें हैं तो उसे तुम खा लो, कहा कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करके जहन्नम की आग से बचो। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करने के लिए मस्जिद बनाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान के लिए, ऐसे नौजवान के लिए, ऐसे शख्स के लिए जन्नत के अंदर घर बना कर देता है, घर बना कर देगा। जन्नत के अंदर घर बना कर देगा। किसको? जो मस्जिद बनाता है।
मस्जिद की तामीर व तरक्की में सदका खैरात करता है, ताउन करता है। और यह हदीस जब पढ़ता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप कितने खुशनसीब हैं, हम और आप कितने खुशनसीब हैं कि अल्लाह के रास्ते में मस्जिद की तामीर व तरक्की में 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 रुपया खर्च करते हैं और उसके बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या देगा? जन्नत नहीं, जन्नत के अंदर घर बना कर देगा। एक जन्नत खूबसूरत घर है जो दुनिया की आंखों ने नहीं देखा, इतना खूबसूरत घर, उसके अंदर और खूबसूरत घर बना कर देगा। तो खुशी की बात नहीं है हम मुसलमानों के लिए, खुश हो जाइए और सदका व खैरात बढ़ चढ़ कर कीजिए। अब एक हदीस और सुनिए। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और लोगों कंजूसी से बचो, और लोगों बखीली से बचो, क्योंकि तुमसे पहले जिन लोगों ने कंजूसी की है, जिन लोगों ने बखीली की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को हलाक कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। बखीली से, कंजूसी से बचना चाहिए। बहुत ऐसे मुसलमान होते हैं, रुपया पैसा तो बहुत होता है लेकिन सदका खैरात कर नहीं सकते। नसीब, ऐसे लोगों का नसीब ही खराब है जिनके पास दौलत होते हुए सदका खैरात नहीं करता है। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा जमाना आएगा, एक ऐसा वक्त आएगा कि लोगों के पास इतनी ज्यादा दौलतें हो जाएंगी, लोग इतने अमीर हो जाएंगे, लोगों के पास इतना ज्यादा प्रॉपर्टी हो जाएगा कि कोई भी सदका व खैरात का पैसा लेने के लिए तैयार ना होगा। वो दिन आने से पहले ओ दौलत वालों, यह हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो दिन आएगा कोई गरीब ना होगा और कोई भी सदका व खैरात का पैसा लेने के लिए तैयार ना होगा। उस वक्त इमाम खोजते रहोगे कि जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा, तरावी की नमाज कौन पढ़ाएगा, और उस वक्त सोचोगे कि अगर काश कि हम उस इमाम को इतनी रकम दिए होते, इतना तनख्वाह दिया होता, तो शायद कि आज हमारा ये नौबत ना आता। उस वक्त सोचकर कुछ फायदा नहीं। सदका व खैरात के पैसे आपके जेब में पड़े होंगे, लेने वाला कोई ना होगा। और एक हदीस, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मेराज में गए थे, जिब्रील अमीन के साथ मेराज में गए थे। आपने जहन्नम को देखा, जहन्नम को आपने देखा तो जहन्नम के अंदर आपने क्या देखा? सबसे ज्यादा औरतें थी जहन्नम में, सबसे ज्यादा औरतें थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से कहा, जिब्रील अमीन ये क्या बात है, ये मैं क्या देख रहा हूं? जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें क्यों? कहा, या रसूल अल्लाह, जहन्नम में औरतें सबसे ज्यादा इसलिए हैं कि वो अपने शोहरों की नाफरमानी करती हैं और चुगली और गिबत करती हैं, इसलिए जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आए, ईद का दिन था, लोग ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। उस वक्त औरतें भी ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए जाती थी। इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरतों की जमात को देखा। आपने उन औरतों से कहा, रुक जाओ औरतों की जमात, जब तक दुनिया में रहो ज्यादा से ज्यादा सदका व खैरात कर लिया करो, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी कर लिया करो। जब मैं मेराज में गया था, मैंने क्या देखा? मैंने जहन्नम को देखा, तो जहन्नम में सबसे ज्यादा तुम थे, जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें थी। एक औरत कहती है, या रसूल अल्लाह,
जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें क्यों थे? आपने फरमाया इसलिए कि तुम अपने शोहरों की नाफरमानी करती हो। तुम्हारा शौहर दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत करता है, कभी ईद के मौके पर, कभी बकरा ईद के मौके पर, कभी जलसा के मौके पर, कभी शादी के मौके पर। अगर तुम्हारे शौहर के पास इतनी दौलत नहीं होती, तुम्हारे शौहर के पास उस वक्त हाथ में कुछ नहीं होता, अगर उस वक्त तुम्हारा शौहर तुमसे कहता है कि ओ बीवी इस जलसे में, इस ईद में, इस बकरा ईद में, इस शादी में तुम सस्ता कपड़ा ले लो, सस्ती वाली साड़ी खरीद लो, सस्ता वाला सलवार सूट ले लो। औरतों की जमात उस वक्त तुम अपने शोहरों से कहती हो कि तुमने तो हमारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं, और चुगली और गिबत ज्यादा करती हो। इसके लिए सबसे ज्यादा जहन्नम में तुम हो। जब तक जिंदा रहो ज्यादा से ज्यादा सदका व खैरात कर लिया करो। तो औरतें अगर सदका खैरात करना चाहती हैं तो उन्हें रोके ना, उन्हें बढ़ चढ़ कर सदका करने के लिए कहें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। वक्त हो चला है और ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाकया बहुत लंबा है, 3, 4, 5 सप्ताह में भी खत्म नहीं होगा। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मैं यही उन्वान को लेकर आऊंगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सदका खैरात करना बहुत जरूरी है। सदका खैरात दीन के लिए, कुरान और हदीस के लिए, मस्जिद को बनाने के लिए सदका खैरात बढ़ चढ़ कर करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। बारक अल्लाहु लना।